हेलो। ओके। हेलो। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? यस प्लीज। ओके। यस सो मैम। सी नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी एक ब्रॉड टर्म है। और in network security there are so many things which we have to learn, okay, which we have to understand. And you will definitely enjoy the network security and its technique, that how can we ensure the security, and most of you know also, right? So I'm sharing my PPT with you, wherein I don't know, in theory also you might have heard about few things, few terminologies, few techniques, uh, but let us see what we have to do. Right now I'm just focusing on giving you an idea of what does network security means. Okay, so in first class I will be giving you the idea, and later on I will be showing you what you have to learn in this particular course. Okay, so I'm sharing my PPT with you. Please, is it visible? Hello? No, ma'am. Is it visible? Not visible? No मैम। No, ma'am. Not visible. Just a minute, just a minute. I'm just doing it. I'm sharing it with you. Just a minute. आप बताएं क्या ये विजिबल है? नेटवर्क सिक्योरिटी विजिबल है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। ओके। ओके। So the bigger question is about that what is network security? Now, as you all know that we are living in the time when information is very important. We know that anytime, anywhere, we can share the information. And you might have seen also that, many videos being viral so quickly. It happens at one place, maybe there is a flood in one area, and immediately people shoot the video and they send it on the net and it becomes viral. It happens. So we have seen that information is actually, is being shared with the speed of lightning, and it is so easy to share the information. So basically, in this particular class, we'll try to understand that what is network security. So, if we talk about network security, it is the process of taking preventive measures to protect underlying networking infrastructure from unauthorized access, misuse, malfunction, modification, destruction, or improper closure. I hope you have understood many a time. In earlier times it was that, if you are using the Gmail, if you using your mail, you open your Gmail, and if you leave it like that, and then after you, if somebody comes in, then he can definitely open, because you are not logged out, so your mail is open, so that person can change your password, that person can send some stupid mails from your ID, your account. This thing happens, right? But now what has happening, that the security uh, uh, has risen to many-fold, and all the time whenever you choose a browser, it asks for the security, it asks for the authorization. तो अभी क्या हो गया है, ऑथराइजेशन बढ़ गया है। और इसकी वजह से, बिकॉज पूरे टाइम हम लोग नेट यूज करते हैं, वी आर यूजिंग इंटरनेट ऑल द टाइम,
And because of that, we are doing professional activities, social activities, Facebook, this and that. All the time we are using network, so we have to make sure that whether our network is secure or not. And this is what we are going to learn in this course, that how to ensure that the network is secure or not. Or maybe if we are sharing the information on net, we have to make sure that how the information that we are sharing is safe and is being shared properly on the net. Now, there are many people who actually can uh, try to, hack your password, who will try to barge into your accounts, your area, your domain, and who will try to break the privacy settings. And, there are people. Now, so the other term which we can use here for network security is the cyber security also. So we have to use measures so that we can actually ensure that the security is there, and we can frequently send our confidential mails over there, and there is no chance of leakage, that somebody can read it or somebody can misuse the content that we are using. It's not there. And there was an issue also with the WhatsApp also, which you are using, which we are using, that WhatsApp is actually hacking the data of its user. So when you are on, we need to understand, whenever you are on network, it is like you are on walking on the road. So whatever thing you upload, whatever discussion you do on Facebook, you're making it public because it is a public place. It is social group, but it is a public place. Anyone can see it, and anyone can read it, and later on also, if you're not using it, it is not going anywhere. It is saved properly in the domain. So before you say anything to anybody on social networking site, just be sure that this will remain there maybe forever. And so please do not do such thing, that do not threaten anybody, do not say anything to anybody. Okay, and do not do such thing. I know you will not be doing, but at least you should know that these are the things which are very important. Another thing which I wanted to discuss is, what are we going to learn? So we are going to learn that how we can ensure the network security. So first thing that we have to understand here, that whenever we go for the password thing, now Neha is choosing a password for the account, let's say the Gmail account or the Facebook account, and Neha is writing Neha. Okay. Now let's say Priyanshu is saving, is writing Priyanshu. Aditya is saving, right? Aditya. Now if you will write your name, and if your user ID is also is of same name, then anyone can open your account. It's pretty simple, that maybe if the person knows your DOB, and if you're using your DOB, then that the person will be using that DOB and can open the account. The hackers are so smart people, they know how to hack it. Acha. So they will either they are, what are they doing? They are just doing, sitting and doing the probability कि ये नहीं तो ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है. No, they are not. They are smarter than that. Okay, ऐसा नहीं है. इस तरह से हैकिंग नहीं होता है. इस तरह से तो हैकिंग आपके दोस्त करते हैं, जो आपको आपको प्रैंक करना चाहते हैं या आपको तंग करना चाहते हैं, जिन्हें पता है वो ऐसा काम करेंगे या आपको तंग करने के लिए. लेकिन अगर साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए, या साइबर अगर हैकर्स की बात की जाए, तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं, दो टर्मिनोलॉजी है. वन टर्मिनोलॉजी इज नोन हैकर, एंड अनदर टर्मिनोलॉजी विच इज बीन यूज्ड for the person who's very good at cyber security is cracker. So hackers are actually the people who are learning who are learning the network security, and who are just doing it because they want to learn more. But if you talk about crackers, just now, like few days back, you there were two, three ladies in the crime, that they have actually taken out so many currency from ATMs, and they have withdrawn a lot of money from ATM, and they have hacked this and that. It is in the news, and earlier also there was news that some foreign national, he came to Jaipur, and he actually hacked many account, and many accounts of SBI customers were hacked, because they have hacked the ATMs
where there were no security, and they have installed some kind of a device there, and they cloned the cards, and afterwards, after which they did the forgery, and the money which was taken out, it was taken out in Delhi. So as I hope you can understand, the person is not here. How can you catch the person? The person is not who is doing the forgery. Now this is the major concern, and that is why you are learning network security, because nowadays all of you are working online, you are working on net, so we must ensure that the passwords are which we are typing in, they should be strong. Now, how will you make them strong? See, you can go for first uppercase letter. So Neha can go for capital N, then he can go for she can go for NEHA. Then she can go for some special characters at the rate. She can go for dollar. She can go for star. She can go for any other character, special character. She can go for 1 2 3 4 5 series. Now this kind of a mixture of all the alphabet, capital and small, and 1 2 3. This is pretty complex to break, right? So you should go for a password which is strong, and again you should not it should not be simple, and it should not be guessable. As I told you, it should not be guessable that नेहा का पासवर्ड तो नेहा ही होगा, ऐसा पासवर्ड गेस करने लायक नहीं होना चाहिए. हाँ, लेकिन पासवर्ड रखने के बाद भूलना भी नहीं है, पता चला कि फिर पासवर्ड भूल गए, फिर दिक्कत हो गई. Okay, as I was discussing that why the security is so important, why we are learning, it is important because it performs roles such as the organization's ability to function without any hindrance. That's why security is important. Then the safe operation of application implemented on the organization's IT system is there, protecting the data the organization collects, its uses. That also is that's why it is very important. Now, coming to that, what are the various different types of security that we can apply, or what are the different types of the security? So number one is access control, number two is application security, number three firewalls, number four virtual private network, VPN, behavioral analytics, wireless security, intrusion prevention system. Please note down all of them. If security comes into your mind, then these are the various ways through which you can say that these are the various types of security system, network security, and these are the places where the hacker or cracker would like to hack the system. These are the places. So, and but cheating a firewall is not an easy task, but definitely, entering into VPN again is not an easy task, but it can happen with the help of a person who's using VPN. आप मुझे बताइए कि आपके अकाउंट में, मूडल अकाउंट में कोई भी जा सकता है? नहीं. कौन जा सकता है? जिसे उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड पता होगा, सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है. If you talk about the wireless security, again the thing is that the password should be very strong, so that people can not easily barge into, they should not be able to peep inside the system. So these are the things which you have to ensure. These are the various types of network security. ये सबको clear है बेटे? Is this thing clear? क्या कितनी तरीके की different security है? Yes, ma'am. Okay. Coming to now a problem where let us read this. Computer networks are typically a shared resource used by many applications representing different interests. All of you agree with that? Now, internet is widely shared, being used by competing businesses, mutually antagonistic government, and opportunistic criminals. Unless security measures are taken, a network conversation or distributed application may be compromised by an adversary. So this is the problem why we are so much into this network security thing, and we want that our students should also understand that this is one area, one gray area, and we have to understand, we have to keep everything to ensure that our data is secured, our documents are secured, and nobody should be able to misuse our documents. We have to see all this, and plus it's not only about documents, it's about your identity, it's about your it's about your videos, it's about your chat, it's about many things that you do, it's about your bank accounts. So there are so many things which are nowadays connected with internet. So secure, that is why security is so much important. Okay.
I would like to ask one question. Nowadays, like, if you have Aditya, I think probably you can answer this question. Please tell me if, like, nowadays, if, let's say, you have to log in. You want to log in on the laptop and the same login you have on your mobile, right? So now, if you want to log in on your, you know, uh, laptop, then what happens? It allow you to log in easily, like it used to do it early, नो मैम, or मैम वहाँ पे okay. मैम बोलता है कि मैम वहाँ पे पहले से ही एक अकाउंट में आपके फ़ोन में वो लॉगिन है, तो मैम Hmm, आपको या तो कोई एक्सेस वहाँ पे देना पड़ेगा, ईमेल से, या फिर hmm, ऐसे कोई एक्सेस देना पड़ता है मैम। तो ईमेल पे पहले hmm, एक्सेस वेरीफाइड करना पड़ेगा आपको मैम, जब भी वो बिल्कुल आएगा। बिल्कुल. यू हैव टू डू ऑथराइजेशन. आपको ऑथराइजेशन करना पड़ता है. जैसे ही मैंने जीमेल, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ आपको. मैंने जीमेल का अकाउंट खोला, जैसे ही मैंने नए ब्राउजर पे जीमेल का अकाउंट खोला, तुरंत ही, क्योंकि वो जीमेल मेरे फोन पे भी है, मेरे फोन पे मेरी स्क्रीन पे एक नंबर आया. 3 नंबर आए मेरी स्क्रीन पे, है ना? और और जो नंबर मेरे स्क्रीन पे आया वही नंबर मेरे मोबाइल पे आया. तो मेरे नंबर आया 74128, फॉर एग्जाम्पल, है ना? ये नंबर आए. और जो नंबर मेरे पास मोबाइल पे आया, ठीक है, ये 3 नंबर, और जो वहां नंबर आया वो नंबर है 28. ठीक है. अब वो मैसेज मेरे पास आया, डू यू वांट टू हैव यू हैव लॉग्ड इन टू अनदर डिवाइस, डू यू वांट टू कंटिन्यू? तो आपको अपनी फिंगर से या तो स्कैन आपका अनलॉक करेंगे, ठीक है, वो करेंगे. दूसरी बात, आप क्या करेंगे, यस करके आप उसमें परमिशन देंगे, यस आई हैव लॉग्ड इन. अब क्या हुआ? अब आपके अकाउंट को ओपन करने के लिए दो चीजें चाहिए. पहला चाहिए आपका मोबाइल, ठीक है. दूसरा चाहिए आपका लैपटॉप. अब मान लीजिए कि लैपटॉप पे कोई हैकर अगर ये कर रहा है, तो जब तक उसके पास में ये मोबाइल नहीं है और इस मोबाइल का एक्सेस नहीं है, तब तक वो आपके एरिया में नहीं एंटर कर सकता. दूसरी बात, अब वो ये दिखाता है कि आपको स्क्रीन पे कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है. अब वो जो नंबर आपको भेजता है वो 3 नंबर भेजता है, 7 14 28, और जो स्क्रीन पे नंबर आपके आता है वो नंबर होता है 28. तो जाहिर है कि आप यहाँ स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो नंबर है 28. तो आप क्या करेंगे, वो 28 नंबर को टच करेंगे, और वहां से कंफर्मेशन चला जाएगा कि यस, जो यूजर जिसका की जीमेल अकाउंट है वो ही आपके लैपटॉप पे अपना जीमेल आईडी ओपन करना चाहता है. अब ये क्या हुआ, ये डबल फोल्ड सिक्योरिटी हो गया कि नहीं हो गया? पहले क्या होता था, आप जीमेल ओपन करते थे, वो एक बार पूछता था कि भाई ये आपका अकाउंट है, और ओपन करने देता था. पहले आपके पास में कुछ ओटीपी काइंड ऑफ आता था, है ना? अब आप देखिए कि सिक्योरिटी को टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज करते जा रहे हैं हम लोग, और उसको मेनी फोल्ड उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं. क्योंकि मैंने देखा है एक टाइम जबकि कोई ऐसा नहीं था, कुछ भी ओटीपी नहीं था, और मुझे याद है कि मेरे एक एमटेक के स्टूडेंट ने इसको एज अ प्रोजेक्ट करके भी दिखाया था कि ओटीपी जनरेट होता है जैसे ही आप मेल एक्सेस करते हो या अपना बैंक अकाउंट एक्सेस करते हो, तो बैंक अकाउंट से एक ओटीपी जनरेट होता है. एट दैट टाइम ये नहीं हुआ करता था, ओटीपी नहीं आता था, तब की बात बता रही हूँ मैं. तो टेक्नोलॉजी ओवर द टाइम चेंज हुई है. पहले ओटीपी नहीं आता था जब हमने ये काम किया था, तो वो ओटीपी हमने जो है जो हमारे एग्जामिनर आए थे उनके फोन पे हमने वो ओटीपी भेजा था कि आप ओटीपी बताइए. जब आप ओटीपी बताएंगे तभी बैंक में आपके कस्टमर लॉगिन में लॉगिन होगा. अब यहाँ पे भी वही डबल चेक होता है. सिमिलरली अब आप एसबीआई और जो भी कोई बैंक होंगे, वो भी क्या करते हैं, जैसे ही आप इंटरनेट लॉगिन करते हैं, इंटरनेट जैसे ही सेवाएं यूज करना चाहते हैं आप, अपनी बैंकिंग सेवाएं, तो वो आपको क्या कहता है, वो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजता है. वो ओटीपी जब उसमें आप टाइप करते हैं आपको तभी एक्सेस मिलता है. इसका मतलब ये हुआ कि दे वांट टू मेक श्योर कि जो आपको जो ये बंदा यूज कर रहा है, जो भी पर्सन यूज कर रहा है, ये सही पर्सन है, इसकी ऑथराइजेशन हो रही है. अब ये ऑथराइजेशन मैंने आपको 2 3 तरीके बता दिए कि इन तरीकों से आपकी ऑथराइजेशन होती है. फिर अब इतना ही नहीं है कि ऑथराइजेशन बैंकिंग के लिए सिर्फ एक बार होती है. ऑथराइजेशन कितनी बार होगी, जैसे मान लीजिए आपको एंटर करना है यानी लॉग इन करना है, तो पहली बार ऑथराइजेशन हुई, जो मैंने आपको बताया कि एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप डालेंगे. दूसरा ऑथराइजेशन, अगर आपने मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की, या आपने ओपन तो कर लिया, अब इसमें से कुछ पैसा निकालने की या पैसा को कहीं भेजने की कोशिश की, तो फिर से ओटीपी आएगा
क्या आप इतना पैसा निकाला जा रहा है, क्या आप इसको निकालना चाहते हैं, और ये ओटीपी है जो आप डालें, आप उस ओटीपी को डालेंगे। अब ये कंफर्म हो गया कि हाँ आप पैसा निकालना चाहते हैं या आप ही हैं जो पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चेक ये होती है, अगर आपके पास में कोई भी मोबाइल ऐप है, जैसे कि मोबीक्विक हो गया, या फिर कोई भी ऐप, किसी भी एसबीआई का योनो हो गया, या कोई भी आपका ऐप है, बैंक का ऐप हो गया। अब बैंक के ऐप में भी डबल सिक्योरिटी देखिए। डबल सिक्योरिटी क्या होगी? फर्स्ट सिक्योरिटी, व्हेन यू लॉग इन, देन व्हाट यू विल डू, यू विल टाइप द नंबर। नाउ दैट नंबर इज व्हाट, दैट नंबर इज योर लॉगिन, now login number which you will type, that number is known to you only, nobody else knows about that। पहली सिक्योरिटी। दूसरी सिक्योरिटी, जब आप ओपन कर लेंगे अपना अकाउंट और अब आप मनी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो मनी ट्रांसफर करते समय आपने सारे डिटेल्स भर दिए कि इस हमें बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। जब आपका सारा काम हो गया, आपने कहा कि सो एंड सो पैसा ट्रांसफर करना है, अब जब आप ट्रांसफर करने पे आए, तब क्या हुआ? तब उन्होंने फिर से ये पूछा कि एक ओटीपी जनरेट हो रहा, या आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो पिन था वो पिन जो है वो डालें और कंफर्म करें कि आप जो है ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। अब पिन किसको पता होगा? पिन तो उसी को पता होगा जिसका बैंक अकाउंट होगा। यानी आप पहले ये नहीं कर सकते थे कि भी, आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने ओपन किया, आपने फादर का अकाउंट ओपन किया और उसमें से मनी ट्रांसफर कर लिया। नाउ इट्स नॉट दैट इजी। जब तक कि आपको ये नहीं पता हो कि पहले उनका पिन क्या है ओपन करने के लिए उस ऐप को, फिर दोबारा पिन क्या है, उससे ऐप से पैसा ट्रांसफर, यानी डबल ऑथराइजेशन। ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा देखा गया कि मैं आपको एक केस बताती हूँ। अभी हमने साइबर सिक्योरिटी पे एक वेबिनार किया था, नॉट नॉट वेबिनार, हमने सेमिनार किया था, जिसमें कि साइबर सेल जयपुर के जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो आए थे। और उन्होंने ये बताया था कि ये जो कुछ गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम्स जो बच्चे खेलते हैं, तो किसी एक बच्चे ने अपने पिताजी के अम, लाखों रुपए उस गेम में ट्रांसफर कर दिए थे किसी दूसरे अकाउंट पे, जो कि जिसकी की वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये गया कहाँ पैसा। और वो ये छुप करके इसलिए करते थे क्योंकि वो जो है गेम जीतना चाह रहे थे, या पता नहीं क्या रीजन था। ही वॉज ट्रांसफरिंग द मनी, और उन्होंने उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया उस बच्चे ने। जब फाइनली पता, उन्हें ये शक था कि कोई साइबर फोर्जरी हुई है या कोई साइबर क्राइम हुआ है, उन्होंने क्राइम ब्रांच को क्या कहते हैं इमीडिएटली पता किया। काफी बड़ा फैमिली था, काफी बिजनेस फैमिली था, बहुत सारा पैसा उनका चला गया था, बहुत परेशानी में थे वो। उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस ने जब पता लगाया, उनके ट्रांजैक्शन को खगाला कि ये ट्रांजैक्शन होते कैसे हैं, इनका पैटर्न क्या है, तो ये उन्हें समझ में आया कि कोई इस पर्टिकुलर अकाउंट में लगातार पैसे भेज रहा है, और वो पैसे प्रॉपर ट्रांजैक्शन से हो रहे हैं, यानी कि पिन डल के हो रहा है। तो यानी कोई आपके घर का मेंबर है जो ये ऐसा कर रहा है। फाइनली ये पता चला कि जो उनका बेटा था वो ही, उसी ने पूरा अकाउंट खाली कर दिया था। तो बच्चों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हम इसको चोरी छुपे कर सकते हैं, या, तो ऐसी बात है ही नहीं। एनी हाउ, आपको क्राइम ब्रांच है या जो भी है, वो हमेशा पता लगा लेते हैं कि आपने ये किस तरह से फॉर्जरी करी है। बिकॉज आप भी जानते हैं, आप तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, कि हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं, हमारे पास बहुत सारे पोर्टल्स हैं। और सबसे मजेदार बात, अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो इससे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप इसमें बहुत कुछ चीजें समझ जाएंगे खुद से भी, और आप एटलीस्ट किसी क्राइम या किसी फॉर्जरी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी का ओटीपी शेयर करना, किसी के ओटीपी पे क्लिक करना, किसी लिंक पे क्लिक करना, ये सब चीजें गलत हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली इट इज एक्चुअली लीडिंग यू टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ अ फॉर्जरी। तो ये नहीं करना है। तो हैकिंग के डिफरेंट तरीके वो भी सीखेंगे, प्लस हम ये भी सीखेंगे कि कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर हाइडिंग द डेटा, हाइडिंग द इंफॉर्मेशन, शोइंग द इंफॉर्मेशन, हाउ कैन यू डी कोड, हाउ कैन यू एनकोड। बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर जो मैं इसकी बात कर रही हूँ वर्ल्ड वाइड वेब की, क्योंकि हम सब लोग उसी पे नेटवर्क पे हैं, तो जो कुछ थ्रेट्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे हैं, तो एक ऑब्वियस थ्रेट तो यही है कि जैसे कि हम कहते हैं कि लीकेज, ईव्स ड्रॉप,
ईव्सड्रॉप, है ना। ये ईव्सड्रॉप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ईव्सड्रॉप क्यों नाम इसका रखा? um, अब यहाँ पे आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनी लेडी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा ना, आपस में महिलाएं बातें कर रही होती हैं पड़ोस में, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं, है ना। क्या कहते हैं कि अरे आज तो हमारे घर में आलू की सब्जी बनी थी, आपके घर में क्या बना था? अरे हमने तो बैंगन का भरता बनाया था। दे आर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। छोटी सी बात है ना। हंसी आ रही होगी आपको कि मैम क्या एग्जाम्पल दे रही है, पर हमने एक छोटी सी बात को शेयर कर लिया। ये एक हमारी पर्सनल बात है कि आज मैंने क्या खाया, मैंने आलू की सब्जी खाई या बैंगन की सब्जी, बट ये मेरी पर्सनल बात है। ये क्या हुआ, ये शेयर हो गई, इसको कहते हैं ईव्स ड्रॉपिंग। इसी तरह से इंफॉर्मेशन जब लीक होती है उसे हम कहते हैं ईव्स ड्रॉपिंग। तो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है ईव्स ड्रॉप, तो उसका मतलब ये होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन में अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईव्स ड्रॉपिंग। एंड दिस इज वेरी कॉमन इन ऑन इंटरनेट। जैसे किस तरीके की इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, आपके डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, है ना, आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन जो है, जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो अगर कोई शेयर कर रहा है या किसी के पास चली जा रही है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी ब्रेक हो रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये एक हुआ काम। टेकिंग द कॉन्सेप्ट फर्दर, कंसीलिंग द क्वांटिटी और डेस्टिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ट्रैफिक कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरी चीजें क्या है हमारी, इसको छुपाना, ये जो इसको अगर हम आगे लेके जाते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी में एक और चीज आती है ट्रैफिक कॉन्फिडेंशियलिटी। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। और अब जबकि जो लेवल है ऑफ कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि एक डोमेन फ्लिपकार्ट के नाम से है और वही सिमिलर फ्लिपकार्ट के नाम से दूसरा डोमेन होता है, और ट्रैफिक, पूरे ट्रैफिक को जो भी लोग खरीदारी करना चाहते हैं जो एक्चुअल फ्लिपकार्ट पे हैं उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है नकली फ्लिपकार्ट पे, ताकि whosoever इज रनिंग द बिजनेस, जो ऑर्डर प्लेस हो वो उस फ्लिपकार्ट पे प्लेस हो और आपको लगे कि हमने तो फ्लिपकार्ट से ये सामान मंगवाया है, लेकिन आप फ्लिपकार्ट पे होते ही नहीं हो, आपका ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है। दूसरी बात आपको मैं बताती हूँ, ज्यादातर लोग गूगल करते हैं। गूगल में आप क्या करते हैं, गूगल में आप कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं, आपको लगता है कि वो सर्च बड़ी ऑथेंटिक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो जो भी नंबर्स दिए जा रहे हो या जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही हो वो गलत हो। तो वेब पे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है, आपको उसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। तो मैंने आपको मेनी फोल्ड्स बताया। आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू। आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को समझें, ठीक है। ओके, कमिंग टू अनदर, coming to another problem. Now, what is the problem? The problem is that if it is not the confidentiality, it is about the some other things also, like an adversary who can't read the content of your encrypted message might be able to change few bits in it and resulting the valid order for and it can all say that अगर आपको तो 10 यूनिट खरीदना है, आपको तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको तो 10 बिस्किट के पैकेट मंगाने थे, है ना, और उसकी जगह 1000 बिस्किट के पैकेट का ऑर्डर हो गया। यू अंडरस्टैंड? ठीक है। तो इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं कि उसमें आपके जो भी आपका ऑर्डर है उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। अब नाउ देर आर टेक्निक्स टू डिटेक्ट दिस काइंड ऑफ टेम्परिंग, और वो टेम्परिंग किस तरह से होती है, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड हाउ द डेटा इंटीग्रिटी is maintained with the help of different techniques, that also we are going to learn, that we are also going to understand. Okay, now let us see another problem. To the website it would appear as though you had simply ordered another of the same item you ordered for the first time. So a protocol which detects replay provides originality, and originality would not however preclude the adversary intercepting your order, waiting a while, then transmitting it, in effect delaying in your order. So as I told you, मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि these are the things which happens
The adversary could thereby arrange for the item to arrive on your doorstep while you are away on vacation when it can be easily snatched. ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ. अब आपने जैसे इसमें कहा कि ये ऑर्डर मेरा कल डिलीवर होना चाहिए, ठीक है. लेकिन इफ देयर इज समबडी हु नोज दैट दिस टाइम, द टाइम विच यू हैव मेंशन्ड, आप उस टाइम से इस टाइम, कुछ एक टाइम है बीच का जिसमें आप घर पे नहीं होते हैं, तो वो भी चेंज किया जा सकता है ताकि आपका ऑर्डर डिलीवर टाइमली नहीं हो और कोई दूसरा उस ऑर्डर को लेके चला जाए. अनदर थिंग, देर आर सम पॉपअप मैसेजेस कम ऑन फेसबुक, है ना. बहुत सारे पॉपअप. अब फेसबुक पे ज्यादातर कौन लोग होते हैं? जो लोग के पास कोई काम नहीं होता, आई एम सॉरी, पर ज्यादातर फ्री टाइम में लोग फेसबुक करते हैं. फेसबुक करते हैं आप, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपको ये शायद नहीं पता जितनी देर आप फेसबुक करेंगे उतनी देर फेसबुक पैसा कमाता है. आप क्या कमा रहे हैं? आप क्या कमा रहे हैं उस दौरान? कुछ नहीं, है ना. हाँ, आप एक साइबर क्राइम के विक्टिम हो सकते हैं. कैसे? इस तरह से कि सलोनी ने कहा कि चलो एक है ना अच्छी सी क्रीम आई है, ये खरीद लेते हैं, क्योंकि वो बार बार पॉपअप हो रही है फेसबुक पे, ठीक है. अब सलोनी ने तो उसका डब्बा वब्बा देख के ऑर्डर कर दिया, लेकिन जब फाइनली प्रोडक्ट आया तो उसमें तो क्रीम ही नहीं थी, हो सकता है पत्थर भर के भेज दी हो किसी ने. दिस हैज हैपेंड. अनदर थिंग, आपकी मदर ने एक बड़ी सुंदर सी साड़ी की फोटो देख करके साड़ी ऑर्डर की ऑन अ वेरी चीपर रेट. अब क्या हुआ जब वो ऑर्डर आया, तो अब ये साइबर क्राइम का पार्ट नहीं है, बट ये साइबर क्राइम शुरू होता है यहाँ से कि इलीगल पीपल दे ट्राई टू चीट इनोसेंट पीपल दिस वे ऑल्सो, कि वो अपनी साइट से आपको दिखाते हैं तो सब्ज बाग के ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर जो प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट जो है उसमें फटी हुई साड़ी निकल के आ रही है, जो तो आपने ऑर्डर भी नहीं की थी, जिसकी वर्थ शायद 10 रुपीज भी नहीं होगी. ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है ना. तो अब ये एक क्राइम का, तो वो पोर्टल्स जो हैं ये आपके साइबर क्राइम्स या आपके जो इस तरीके के लोग होते हैं जो कि अनएथिकल काम करते हैं, उनके लिए एक प्लेस हो गया, बिकॉज उनकी आइडेंटिटी तो किसी को पता ही नहीं है. शायद अगर आप उस दुकान वाले को देखें और जाने तो शायद आप कभी ना खरीदे उससे सामान वैसे, लेकिन क्योंकि वो नेट पे है, तो इट दैट इज वाई वी ऑलवेज प्रेफर ब्रांड्स. लेकिन अब ब्रांड्स में भी मैंने जैसे आपको कहा कि ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं आप किसी साइट पे जो आपकी एक्चुअली ओरिजिनल साइट नहीं है. तो डेटा इंटीग्रिटी मैटर्स, डेटा की ओरिजिनलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर्स, और उसी लिए साइबर सिक्योरिटी मैटर्स. क्लियर? ओके. नाउ जो दूसरा थ्रेट है, दैट इज, मैंने अभी आपको जो डिस्कस किया, दैट यू आर बीइंग डायरेक्टेड टू अ फॉल्स साइट. इट कैन रिजल्ट इनटू डीएनएस अटैक, यानी आपका जो डीएनएस है वो अटैक हुआ है, एंड विच फॉल्स इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इनटू द डोमेन नेम सर्वर. एंड अभी मैं आपको बताऊं, शायद बैंक का नेम और जो फॉन्ट का जो स्टाइल होता है, आप अगर उसमें भी कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि हम ध्यान ही नहीं देते. हम देखते ही नहीं है कि मैकडोनल्ड्स कैसे लिखा हुआ है. हम ये देखते ही नहीं है कि ये इसमें फॉन्ट कौन सा यूज हुआ हुआ है. और हम ब्लाइंडली, बिकॉज हमने हमारी आईज बहुत धोखा खाती हैं, तो हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंश्योर करना है कि अगर डीएनएस अटैक हुआ है तो वो आपको किसी नकली साइट पे लेकर के जाएगा, और विच विल बी ट्रांसलेटिंग अ करेक्ट यूआरएल इनटू इनकरेक्ट आईपी एड्रेस. यूआरएल कुछ और होगा, आईपी कुछ और होगा, तो एड्रेस वो कहाँ जाएगा? आपका क्लिक करने पे आप कहाँ जाओगे? फेक फॉल्स वेबसाइट पे जाओगे. So a protocol that ensures that you really talking to whom you think you are talking is set to provide authentication. और इसीलिए authentication जरूरी है हर जगह पे, हर समय. चाहे आप सामान खरीदें, चाहे आप बैंक से पैसा निकालें, चाहे आप किसी को अपनी इंफॉर्मेशन भेजें, चाहे आप कोई एप्लीकेशन जॉब के लिए लगाएं, या आप कहीं भी कुछ भी, आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी भेजें, अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर रहे हो, तो सिक्योरिटी हर जगह पे जरूरी है और ऑथेंटिकेशन भी हर जगह पे जरूरी है. तो अब हमें ये देखना है कि अब इसको करना कैसे है, हम इसको सीखेंगे कैसे, है ना. वो हमें देखना है. ऑथेंटिकेशन entails integrity, since it is meaningless to say that a message came from a certain participant if it is not no longer the same message. ओके. तो अगर ऑथेंटिकेशन हमें और इंटेग्रिटी इंश्योर करनी है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर ऑथेंटिकेट किया है आपने, और अगर एक मैसेज आपने मेल भेजा है,
तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेल मैंने नहीं भेजा है, क्योंकि आप ऑथराइज्ड हैं, आपने ऑथेंटिकेट किया है। डेफिनेटली अगर आपने कोई मेल भेजा तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, ठीक है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाउ another problem, if you see, the owner of the website can be attacked. Kaise? Some websites have been faced. The file that make up the website content have been remotely accessed and modified without authorization. So this can also be done. This is an issue of access control, enforcing the rule regarding who is allowed to do what. Websites have also been subjected to denial of service attacks. तो अगर जो इस तरीके का होता है तो उसे क्या बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, during which would be customers are unable to access the website because it is being overwhelmed by bogus requests. समझ गए आप? तो आप क्या होगा, आप बार बार ट्राई कर रहे हो, लेट्स से फ्लिपकार्ट को ओपन करने का ट्राई कर रहे हो, पर वो ओपन ही नहीं हो रहा है, और बिल्कुल ओपन नहीं हो रहा है, आप कह रहे हो पता नहीं आज इसके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हो क्या रहा है, वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के अंडर में है, और आपका जो राइट ट्रैफिक है वो उस तरफ जा ही नहीं रहा है। नाउ अगर हम इसका एक्सेस अवेलेबल कराते हैं या इसको हम इसको ठीक करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ensuring the degree of access is called availability. So we will have to ensure as a cyber expert, cyber security expert, कि availability of website is also there. अगर हम ये सारी चीजें सीखते हैं तो हम कहलाते हैं कि हाँ हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता है, हम जानते हैं, और हम ये गलती नहीं करेंगे कि इस तरीके की चीजों में हम फंसे। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा मोटिवेशन है लैब के लिए, इजंट इट? यस मैम। अच्छा, अभी मैं आपसे दूसरी एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट आई एम शेयरिंग द फाइल, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। एक मिनट बेटे, जस्ट होल्ड ऑन, आई एम शेयरिंग। माय सिस्टम इज बिट स्लो, जस्ट अ मिनट।
एक मिनट। हाँ, एक मिनट, मैं कैमरा ऑफ करती हूँ, शायद ज्यादा लोड है। एक मिनट रुकिए। ओके, अभी आई एम शेयरिंग विद यू दी वन ऑफ दी वर्चुअल लैब्स सो दैट यू हैव एन आइडिया के क्या क्या है जो कि हम इस लैब में और सीख सकते हैं। वन ऑफ द वर्चुअल लैब विच इज बीन गिवन बाय आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे का वर्चुअल लैब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, एक बार देखें और समझें। ये देखिए, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखिए बेटा, आपको नजर आ रहा है? दिखाई बताइएगा मुझे, इज इट विजिबल? यस मैम। यस मैम। अब ये जो नो मैम। कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी लैब है, यहाँ यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास है एनक्रिप्शन, सीजर सिफर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये मैं सीजर सिफर और एनक्रिप्शन पे बाद में आना चाहूंगी, पर फिर भी आपको दिखाना जरूरी है कि किस तरह से क्या हो रहा है। ये आईआईटी बॉम्बे का हमारा नेटवर्किंग लैब है, प्लेटफॉर्म है। इसका एम टू अंडरस्टैंड द एनक्रिप्शन ऑफ मैसेज यूजिंग सीजर सिफर इन सिक्योर मैसेज एक्सचेंज। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी नहीं। बट आप सिर्फ इसका इंटरफेस देखिए, ये देखिए इसमें हो क्या रहा है। ये एक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है जिसमें हम एक प्लेन टेक्स्ट लेते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे हमारा जो मैसेज है, वो मैसेज लीक हो गया। अब वो मैसेज लीक नहीं हो, इसके लिए अगर हम उस मैसेज को बदल दें, उसको कुछ इस तरीके का कर दें कि कोई समझ ही ना पाए कि ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करके सिफर टेक्स्ट में बदलना पड़ेगा। ठीक है, और सिफर टेक्स्ट को जब हम भेजेंगे तो वो दोबारा से डिक्रिप्ट होकर के फिर वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो इसको इस तरह से किया जाता है, ये इसकी थ्योरी है, विच आई वी विल बी चेकिंग अगेन। अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आपको इसको कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है ये है इसका सिमुलेशन। ये देखिए, ये इसका सिमुलेशन है। यहाँ देखिए, अब अगर मान लीजिए आपको कोई मैसेज को एनक्रिप्ट करना है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। हम्म, देखिए, अब यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं हम। ठीक है, हम डालते हैं डिप्लोमा PSE। ठीक है, फिफ्थ सेम। ठीक है, यस ये मैम। हमने एक टेक्स्ट डाल दिया। सबको दिख रहा है बच्चों? यस मैम। हेलो? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक की वैल्यू डालते हैं। ओहो, एक मिनट। यस। चलो लेट्स सी, मैंने इसमें एक की वैल्यू डाल दी, 12। हाँ, ठीक है, एंड नाउ आई विल बी, अब यहाँ पहले मैं इसको करने से पहले देखिए हिंट पे चले जाते हैं। अब हिंट में क्या है? चलो पहले हम यहाँ पर इवेलुएट कर, इट्स नॉट वर्किंग, वेट वेट वेट।
रीसबमिट, चलो दोबारा सबमिट कर देते हैं। अच्छा, अम, ये देखिए क्या हुआ। आई हैव एंटर्ड वन टेक्स्ट, आई हैव गिवन सम रैंडम, everything wrong I have given here and I have guessed it. Answer is incorrect as the length of ciphertext and plain text mismatch. ये है आपका plain text which I have given diploma CSE 5th sem। कितने कैरेक्टर्स हुए बेटा, कोई बताएगा? देखिए चलिए हम यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं, ये सेम लिख देती हूँ। मैम 16 कैरेक्टर हुए। हाँ ठीक है, अब देखिए, ये देखिए। ओके, सो दिस इज द मेथड। अगर आपने कोई एंटर करा है मैसेज और आपने कोई वैल्यू दिया है, देखिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ये देखिए इज इट वर्किंग। दोबारा रीसेट करती हूँ मैं एक बार। हाउ इट हैपेंस, मैंने जैसे बताया ना कि ये जो सिफर टेक्स्ट है ये मैं अभी आपको नहीं पढ़ाना चाह रही, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है। ठीक है, ओके। प्रोसीजर में आ जाइए, देखिए क्या करना है आपको। एक प्लेन टेक्स्ट एंटर करना है, एक वैलिड की बॉक्स में डालना है, थिंक एंड सॉल्व मैनुअली एंड एंटर द रिजल्ट, जो मैंने किया जो गलत हुआ। हिट सबमिट मैंने किया, वो भी गलत हुआ। हाँ, दूसरी बार में मैंने वही एग्जैक्टली डाल दिया, तो सिमुलेटर अगर राइट रॉन्ग है वो डिस्प्ले करेगा, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो ठीक है, तो फिर आप उसको दोबारा रीसेट कर सकते हैं। इफ योर आंसर इज रॉन्ग यू कैन यूज हिंट एंड री एंटर दी दिस थिंग। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें दोबारा से एंटर करती हूँ। ओके, ये सिमुलेशन में मैं जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे लेट अस सी, मैं इसमें टाइप करती हूँ ज्योति। ठीक है, एंटर की नंबर 1 डाल देती हूँ मैं इसमें, और यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ नेहा 1। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन, ये देखिए प्लेन टेक्स्ट प्लस की वैल्यू इज इक्वल्स टू सिफर टेक्स्ट। ठीक है, अभी सोल्यूशन वर्किंग, so this is it. Okay, hint, evaluate. रीसेट दोबारा करते हैं एक बार। ज्योति ये देखिए, ठीक है ना, टेक अ हिंट। चलिए हिंट दे देते हैं। द लेटर्स नेहा 1 आर इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। ठीक है, तो उसने बता दिया कि जो आपने ये डाला था ये इनकरेक्ट है। अभी ज्योति आई नहीं लगाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, अब हिंट ले लेते हैं, सॉरी सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखिए ये हर जो आपका की वैल्यू है वो ऐड हुआ है J+1K, Y+1Z, O+1P, P+1U, I+1J, इस तरह से। ठीक है, लेकिन जब आपने इसको अगेन प्लेन टेक्स्ट और की वैल्यू को ऐड करा तो सिर्फ टेक्स्ट बनता है। आपका सिर्फ टेक्स्ट तो जो है वो सेम लेंथ का तो होना चाहिए ना, अगर वो सेम लेंथ का है तभी वो सही होगा। प्लीज इसको नोट कर लें, हालांकि मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊंगी ये, तो अभी तो जस्ट आई एम जस्ट शोइंग यू कि कैसे आपको करना है। ओके, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? तो ये एक तो वर्चुअल लैब है जो मैंने आपको दिखाया, आई एम स्टॉपिंग इट हियर। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ। हम्म, एक मिनट जरा रुकिएगा, What does AI mean for business leaders जस्ट अ and मिनट। for business managers? How can it be converted into value and opportunity? जस्ट अ मिनट।
ओके, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिएगा। एक छोटी सी शॉर्ट सी मूवी है, जस्ट देखेंगे इसको। इट्स ऑन साइबर सिक्योरिटी। हाँ, You don't know these people, but they've spent the last 10 months getting to know everything about you, your colleagues, and your company. They've been quietly scanning and mapping your networks, collecting credentials, and identifying the critical data they want to exploit, all without being noticed. Until today. Three. Dalawa. Three. Dalawa. Hey, you about ready to get out of here? No, another exciting Hey, night you about of ready to get out of triage here? analysis. Sounds thrilling. Try not to have too much fun. Sounds thrilling. Hey, have a good weekend. You too. Have a good weekend. Hey, Meg. Before you go, did you see this email from the cyber threat intel provider? Wait, what? Wait, Let what? me check some sim logs. Is this accurate? Who disabled the log feed from the server? All the IDSs are down too. Yeah, you need to get Reynolds on the phone. Yeah, you need to get Reynolds. Now! I promise. I'm leaving now. I'm sorry. I got tied up. I'm leaving now. I know the reservations are at 8. Don't worry. I know the reservations are at 8. Don't worry. I'll be there. Honey, I'm gonna have to call you back. What's wrong? Bruce, this looks like a major compromise. What's wrong? The cyber threat intel provider found a sample of our data for sale on the dark web. As I was going to confirm the sample, I found that the IDSs and the logs are down. Yeah, it gets worse. Our public-facing websites are going offline. Employee data, client data, email servers, account numbers. It's all up for sale to the highest bidder if we don't pay now. It's all up for sale to the What do you highest want us bidder to if we do? don't pay now. What do you want us to do? Bruce, what do you want us to do? Bruce, what do you want us to do? Checkmate. Go to severity level 1. Recall the team. I want forensics all over this. Recall the team. I'll notify leadership and meet you in the SOC. I'll notify leadership and meet you in the SOC. Got a long night ahead of us. hello, hello. Yes, ma'am. I think enough motivation for all of you. No need to go Yes, ma'am. to the bank and hijack a bank and do this. Nowadays, people are actually doing the theft like this. And you have to be very intelligent. आपको किसी भी इन चक्करों में नहीं आना, बल्कि आपको इनसे बाहर निकलना है और कुछ ऐसा बनना है कि people will hire you for that you know their data is secure, and you do whatever you can do to make their data secure. ठीक है? Okay, because ultimately now if they do the forgery, it's not कि वो हमेशा के लिए होगा. They will be caught. They will definitely be caught. But this is a big threat, और आपके लिए this is a big opportunity कि आप साइबर सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसमें आप लैब भी कर सकते हैं. आप लैब करोगे तो आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा. ओके, तो माय थिंग इज कि नेटवर्क सिक्योरिटी में आपने अभी क्या क्या पढ़ा है. आपने, प्रियांशु बताएंगे राशिद सर ने क्या क्या पढ़ाया आपको? हेलो, हाँ प्रियांशु, आदित्य, कोई भी बताएं आपने क्या क्या पढ़ा है नेटवर्क सिक्योरिटी में अभी. हेलो मैम, सर कोई क्लास अभी नहीं लिए थे. अभी तक आपकी कोई भी क्लास नहीं हुई है नेटवर्क सिक्योरिटी? तो मैम फर्स्ट क्लास है आज. ओह माय गॉड. मैम थ्योरी क्लास हुई है मैम. मैम बहुत सारी. नहीं तो क्या पढ़ाया गया उसमें नेहा? इतनी देर से मैं यही पूछ रही हूँ आपसे.
कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़े उसमें, कुछ याद तो होगा ना आपको? एक आधे टॉपिक बता दीजिए कि हमने ये चीजें पढ़ी है उसमें। कुछ चीजें पढ़ी होंगी ना डेफिनेटली आपने, वो तो बताएं कि हमने ये सब चीजें पढ़ी है। हाँ मैम सर ने मैम कॉन्फिडेंशियल हम्म और मैम ये सब मैम जो टॉपिक्स थे मैम ये बढ़ाए थे। ऑथराइजेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीजें आप बताइए। दैट मीन्स आप इतना तो समझते हैं कि आपका जो पासवर्ड है, आपके पासवर्ड्स रेगुलरली चेंज होने चाहिए। और अगर आप किसी बड़ी कंपनी में हैं तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इशू। आपने अपनी आंखों के सामने देखा इस छोटी सी मूवी में कि देखते देखते उस साइबर एक्सपर्ट के सामने सामने से क्या हुआ, सारा सारा कनेक्शन चला गया और दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए 3-4 लोगों ने पूरी पूरी वेबसाइट, उनका पैसा और उनका, क्योंकि अभी क्या हो गया, सारा पैसा कहाँ जा रहा है, अभी क्रिप्टो करेंसी आ गया, आपको भी पता होगा। So money has become virtual. Earlier also banks became virtual. बैंक का money became virtual. Your accounts became virtual. सब कुछ तो virtual पे चला गया है। तो अभी everything is virtual, but that virtual money can be easily transferred to any of the account. इसको रोकने के लिए अगर आपको साइबर सिक्योरिटी सीखना होगा, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में और अभी भी इस समय में भी ये एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, जिसमें आपको बहुत सारा कुछ आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, तो आज आप ये कर ले। ठीक है, और मुझे बताएं डीपीएम की क्लास मैं आपकी कल कंडक्ट कर लूं, एट अ स्ट्रेच कंडक्ट कर लूं। मैं एक चीज चाह रही थी आपकी डीपीएम क्लास के लिए कि आप जो है मुझे जो प्रेजेंटेशन या जो भी फोटोशॉप पे आप, क्योंकि देखिए ट्यूटोरियल बहुत लंबा होगा, उसका फोटोशॉप का ट्यूटोरियल मुझे ऑनलाइन देने के लिए काफी देर तक आपको बताना होगा। तो इधर आप एक काम करें कि आप डिवाइड कर लें कि जैसे आदित्य और प्रियांशु और रंजन जिनके पास में भी लैपटॉप्स हैं, कि आप जो है 15 मिनट या हाफ एन आवर आप ऐसा डिवाइड कर लें कि आप उसमें एक किसी चीज का डेमो आप उसमें तैयार कर लें। कुणाल, व्हाट डू यू से? आदित्य, रंजन, यस मैम। तो क्या ये हो सकता है? क्योंकि देखिए कुणाल आपका तो एरिया ही है, आप तो करना ही चाहते हैं फोटोशॉप में। यस मैम। तो यू डाउनलोड फोटोशॉप, आज ही डाउनलोड कर ले ताकि कल आप एक डेमो अच्छा सा तैयार कर ले। तो साथ साथ आपका बनता भी जाएगा। देखिए मैं आप हमेशा से जानते हैं कि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। आप सिर्फ मेरी क्लासें इसलिए ना अटेंड करें कि आपको अटेंड करना है कि भाई हाँ क्लास है तो ले लिया और क्या पढ़ाया था वो नहीं। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जरूरी है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जरूरी है। तो आप इसमें करें, साथ साथ आपका प्रोजेक्ट भी बनता चला जाएगा। और इसी तरह से जो भी कोई बना रहा है वो अपना प्रोजेक्ट हैंड्स ऑन करे, मुझे बताए जैसे आपने पहले किया था, ताकि एक डेडलाइन मैं आपको दे दूंगी, तब तक आपका कुछ 50% तक का आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाना चाहिए। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? तो कुणाल आप एक तो फोटोशॉप डाउनलोड कर लें क्योंकि आप करना चाह रहे थे। सलोनी आप भी कर लें, आप भी डाउनलोड कर लें, आप भी कुछ इस तरीके का क्रिएटिव करना चाह रही थी। और जो है आप लोग दोनों लोग दो डेमो देंगे। ठीक है, प्रियांशु आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टी आप मुझे बता दीजिए कि आप डीपीएम में क्या करना चाह रहे हैं, बिकॉज नाउ आई एम बिगिनिंग दी प्रेजेंटेशन। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, पिछली भी प्रोजेक्ट में मैंने देखा था कि आपने कोई काम नहीं किया है। तो आई वांट कि अब आप जो है काम करें और प्रोजेक्ट्स भी दें। ठीक है, इट्स ओके।